डियर स्टूडेंट्स, गार्डन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जयपुर अपना एक मेजर टेस्ट 16 अपन डिस्कस करते हैं। पेपर आप सभी के पास है। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो वर्बली हो सकते हैं, उनको अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अपन जो फंडामेंटल कह सकते हो जिनमें कैलकुलेशन है उनको अपन डिस्कस करते हैं। वैसे अपन सभी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चलूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, liquid drop mass m and number of excess electrons on it and it is in equilibrium in a region of uniform electric field of strength E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये इक्विलिब्रियम में है, that this is drop, its mass m, then its weight mg will be downward। Definitely इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा it will be for equilibrium in upward direction and it is QE। If excess or deficiency of electron is n, then we know that Q equal to plus minus n into E. But here electrons are excess, so Q equal to minus n E. But this is direction QE, so definitely electric field will be in downward direction because this is negative charge due to excess of electrons. In equilibrium, QE equal to mg. We put value of n e into E equal to mg, and asking in this question is gravity g. So easily we can calculate n e e upon m. This is g. Question number second. Mass and energy time t are taken as fundamental quantities, then the dimensional formula of length. Dimensional formula of length, it means length depends on mass m, energy E and time t. That their power depends on their power x, y and z. Dimensions of energy ml2 t minus 2 power y. Now L will be proportional to m raised to the power x and L2 t minus 2 power y t raised to the power z. Okay. Now in left side we can write m0 L t0 proportional to m raised to the total power is x plus y, L raised to the total power 2y and t minus 2y plus z. Now we equate powers x plus y power of m. In right side is x plus y, in left side it is 0, so this is equation first. In right side power of n is 2y, this is 1, so definitely we can get y equal to 1 by 2. Now on right side power of time minus 2y plus z and in left side it is 0. Now put the value of y minus 2 1 by 2 plus z equal to 0, so we get z equal to 1 plus 1. Now put the value of y in equation first, we get x equal to minus half. So length will be or depends on m, e and t as m raised to the power x, x equal to minus 1 by 2, e raised to the power y and it is 1 by 2 and t raised to the power z and it is 1. So this is the formula of L in form of m, e and time t. Now we discuss question number 4. Simply, we know that if a particle moving on a circular path with constant speed, let
At this point velocity is v1. After theta, its velocity becomes v2, but it is moving with constant speed. So their magnitude v1 equal to magnitude v2, and it is at v. If a particle rotates by an angle theta, then magnitude of change in velocity will be delta v equal to 2v sine theta by 2, and here v is given, theta equal to 60 degree. We can easily calculate this. Now equation number 5. A curve is given or graph given between v and a square, and it is a straight line. Make an angle 30 degree, 37 degree to the horizontal. Now we know that tangent or slope of a curve is d a square upon dv. If a curve plot between x and y, then their slope will be dy by dx. So for this curve, this is dA square upon dv, and it is equal to tan theta, where theta is the angle made by line or tangent to the horizontal. Now it is 37 degree, so it is tan 37 degree. Now we differentiate a square. So this differentiation will be 2a dA upon dt, and value of tan 37 will be 3 by 4, or 2a dA equal to 3 by 4, this is dV, into dV. Now we differentiate with respect to time, or divide by dt on both sides. So dA by dt equal to 3 by 4, and this is dy by dt. Here we divide this equation by dt, because in this question asking that what is change of acceleration. Rate of change of acceleration is change in acceleration with time. So this quantity is asking dA by dt. We determine dA, that's why we divide on both sides by dt. Now we know that dA by dt, dV by dt, it is acceleration A. Now dA to A, you cancel on it. So the rate of change of acceleration dA by dt will be equals to 3 by 8, and this is our answer. dA by dt will be 3 by 8. Now average velocity for a particle, because in a gaseous molecule particles move randomly, so their average velocity will be 0. Question number 7 we can solve according to equation of AC, alternating current, and it is for a half time period. It is 2I maximum upon pi, so this is 2V maximum upon pi. Now question number 8. Power is given P equal to 3t square upon 2. In this question, यहाँ पर अपने को पावर दिया गया है और इस पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन वर्क. वी नो दैट पावर इज रेट ऑफ वर्क डन dW by dt, and this is 3t square upon 2. Now W equal to integration 3t square by 2 into dt, and time limit 0 to 2 seconds. 3t cube upon 2 into 3, because differentiation of t square, integration of t square is t cube by 3. Now put the limit 0 to 2, 3 to 3 cancel, 8 by 2, this is 4 joule.
and according to work energy theorem, W equal to delta K means final energy minus initial energy. Initial kinetic energy is 0 because initial velocity is 0. So work done equal to 4 joule, and this is half mass 2 kg and it is V square. So here we get V equal to 2 meter per second. This is our answer. Question number 9, we can easily calculate by continuity equation. A into A1 V1 equal to A to V2. In question number 10, body is projected horizontally from a building of height 50 meter with velocity 80 meter per second. Path of body will be projectile. इस क्वेश्चन में अपने को वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है. वर्टिकल कंपोनेंट वैसे अगर अपन देखें तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0. इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है. तो अगर अपन थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहां पर ये 0 होगा प्लस 2gh, तो v की वैल्यू √2gh के अकॉर्डिंग आनी चाहिए. लेकिन अगर ये अपन इससे कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री नहीं होगा. यहां पर अपने को एंगल इज गिवन 45 डिग्री. तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रेजिस्टेंस फोर्स वर्क कर रहा है जो इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहा है. तो यहां पर अब ये 45 डिग्री से स्ट्राइक करता है. इसकी वेलोसिटी ये इस डायरेक्शन में भी डैश मानने पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने को पता है वेलोसिटी जो है वो 18 मीटर पर सेकंड और चेंज भी नहीं होगी क्योंकि कोई किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है. अब यहाँ पर ये एंगल अपने को दे रखा है 45 डिग्री, और 45 डिग्री जो है वो एंगल तभी बनता है जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दोनों कंपोनेंट जो है वो इक्वल हो. तो डेफिनेटली दिस वेलोसिटी विल बी 18 मीटर पर सेकंड. 18 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा. इसको डायरेक्ट अपन करेंगे इससे. तो यहाँ पर अगर इसको एंगल अपने को 45 दिया गया है इसलिए अपन ने यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख दिया कि 18 मीटर पर सेकंड होगा. अगर ये एंगल नहीं दिया हुआ था तो वर्टिकल कंपोनेंट इससे अपन कैलकुलेट करते हैं एंड दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम 18 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब यहाँ पर पहले भी बता दिया कि यहाँ पर डेफिनेटली रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 11 यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है. और अपन जानते हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर अपन एक ग्लास प्लेट रख देते हैं इन पाथ ऑफ ए रे तो पूरा फ्रिंज पैटर्न अपने को पता है शिफ्ट होता है. This is D, small d, distance between slits S1 and S2. This is distance between slits and screen. Y equal to D upon D, mu minus 1 into T. This is shift of fringe pattern. In first case, D upon D, mu is given 1.5 3 by 2 minus 1 into T. So this is dt upon 2 into D, equation first. In second case, thickness of slab is same and let it is fringe shift is y dash. Then y dash equal to d upon d because there is no change in distance between slits and this distance. So d upon d and let this is mu dash minus 1 into same thickness T. It is given that y dash equal to 3 by 2 into y, d upon d, mu dash minus 1 into T. Now put the value of y, 3 by 2 dt upon 2d equal to d upon d, mu dash minus 1 into T.
dt, d cancel. This is 3 by 4 equal to mu dash minus 1, or we get mu dash equal to 7 by 4, and this is 1.75. Question number 12 is easy, and we know that work done equal to area of graph between P and B. If curve is clockwise, work done is positive; anti-clockwise, it is negative. In both this left and right volumes are equal. Work done are equal, or area of graphs are equal, and one is clockwise, anti-clockwise other, then total work done will be 0. Now question number 13. Where is the question? Frequencies of string. We know that frequency of string is n inversely proportional to their length. Ratio of frequencies are given, so asking length. So L1 ratio L2, here L also inversely proportional to L. Ratio L3 equal to 1 upon N1, 1 upon N2, 1 upon N3. This is 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3. So this will be 6, 3, 2. Where is the equation? Now question number 14. There are two SSNs superimposed on each other, so resultant displacement will be y1 plus y2. This is a sin omega t plus a cos omega t. This equation can be written as root 2a sin omega t plus phi. Also we know that if there is the equation like this, a1 sin omega t plus a2 cos omega t, then amplitude of this equation a equal to, this is root a1 square plus a2 square. So in this case, amplitude of equation of SSM will be root 2a. Now it is asking that what is kinetic energy? Kinetic energy in SSM, k equal to half m omega square into amplitude square root 2a whole square. So this is m omega square a square. This is answer. Question number 15 is very easy. In this question, a charged particle is outside the sphere. So on sphere, charge induced. Since there is no initial charge on sphere, so total charge will be 0. In question number 15, charge P, this is positive charge. So in this direction, negative charge induced. In this direction, positive charge induced. So total charge on this sphere will be 0. If we imagine a surface, then definitely from this surface emerging flux will be positive. Question number 16. There are two mass connects with two springs, and this is K and 2K. This whole system we can convert in a single system, single spring system. Here this is called reduced mass and this is K equivalent. So this system can be converted in this system. These two springs are connected in series, and in series we know that K equivalent 1 upon K equivalent equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2.
If we put values of K1 and K2, then we get K equivalent equal to 2K by 3. After we solving, we get K equivalent equal to. If two masses are connected, this can be reduced in a mass mu. This is called reduced mass. And reduced mass mu equal to, it is equal to m1 m2 upon m1 plus m2. Both mass are equal, so definitely this will be m by 2. Now we know that for a spring system, for a single spring system whose K mass is this, then time period will be 2 pi rho m means mass means mu upon K equivalent. Now 2 pi mu m by 2 and this is 2K by 3, so our answer will be root 3m upon 4K. Question number 17. Mass capital M, small m, force m. यहाँ पर अपन देख रहे हैं कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन केवल यहाँ पर प्रेजेंट है और अपने को वो फोर्स कैलकुलेट करना है जो स्मॉल एम मास के ब्लॉक को यहाँ पर रेस्टिंग में रखे, इसके साथ रखे। अपन जानते हैं इसका वेट वर्क करेगा mg, यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब अपन फ्रिक्शन फोर्स अपन जानते हैं ये होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगी वो लगेगी बिटवीन टू ब्लॉक्स, इन दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, उसको अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपन जानते हैं कि इस फोर्स के कारण ये दोनों ब्लॉक मूव करेंगे विद द सेम एक्सीलरेशन a, और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होगी वो होगी F अपॉन m प्लस कैपिटल M और F, और अगर दोनों ब्लॉक्स का मास अपन पुट करते हैं तो ये वैल्यू अपने पास आती है 60, तो F बाई 60। अब ये जो स्मॉल m का इसका एफबीडी अगर अपन देखें स्मॉल m, यहाँ पर अपने पास लगा फ्रिक्शन, इन दोनों ब्लॉक्स का जो ये कांटेक्ट है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी n और यहाँ पर ये मूव कर रहा है विद एक्सीलरेशन a। यहाँ पर अब अपन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, F माइनस n इक्वल टू m इंटू a और नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू F माइनस m इंटू a एंड दिस इज F माइनस m एंड स्मॉल m की वैल्यू 10, a की वैल्यू है F अपॉन 60। तो यहाँ पर इसको अगर अपन पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये F बाई 6 और सॉल्व करने पर ये आ जाएगा अपने पास 5F बाई 6। अब अपने को अगर इस ब्लॉक को इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में रखना है तो ये वेट इसका वर्क करेगा mg और यहाँ पर ये फ्रिक्शन, ये दोनों इक्वल, तो मिनिमम फोर्स चाहिए, इसको इक्वलाइज करके कर सकते हैं F इक्वल टू म्यू इंटू n एंड दिस इज इक्वल टू mg। म्यू की वैल्यू गिवन है अपने को 0.5 या 1/2, नॉर्मल रिएक्शन अपने पास आ गया F 5F अपॉन 6 और ये वैल्यू है 10 एंड दिस इज 10। इनको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास F की वैल्यू 240 न्यूटन। तो ये वैल्यू अपने पास फोर्स F की रिक्वायर्ड होगी जो इसको यहाँ पर रेस्ट में रखेगी। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ भी नहीं, केवल इसके अंदर फोर्स जो F लगेगा वो इक्वल टू टेंशन के होगा, टेंशन को बैलेंस करना है सभी के अंदर एंड इनके दोनों के वेट के इक्वल होगी। वेट है W1 प्लस W2 और टोटल टेंशन ऊपर की तरफ होगी 4F। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर अगर अपन देखें दो पैरेलल वायर्स, मैं केवल इसके अंदर फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, वैल्यूज आप इसमें पुट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अपन जानते हैं कि अगर दो पैरेलल वायर्स हैं, करंट एक में I1 सेकंड में I2 और इनके बीच में डिस्टेंस अगर R D जो भी अपन माने वो है, तो इनके जो यूनिट फोर्स जो लगता है वो फोर्स की वैल्यू जो होगी वो अपन जानते हैं म्यू नॉट I1 I2 यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स 2 पाई R और L लेंथ पर जो फोर्स लगेगा वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर अपने को जो कंडीशन दी गई है
इसमें करंट I1 मान ले, यहां पर अगर अपन इसके अंदर सिचुएशन देखें, ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट है, सेम डायरेक्शन में करंट के कारण यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा F1, ये अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स होगा F2। ये डिस्टेंस अपन मान लेते हैं A, ये डिस्टेंस मान लेते हैं D। इसकी लेंथ अपने को जो भी दे रखी है, तो यहाँ पर F1 की जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्ट लिखता हूँ, ये F1 माइनस F2 की, और ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई A अपने को जो वैल्यू जो है ये 2 सेंटीमीटर गिवन है, ये वैल्यू अपने को गिवन है 10 सेंटीमीटर माइनस म्यू नॉट I1 I2L, और केवल डिस्टेंस में चेंज आएगा, इसलिए ये डिस्टेंस जो आएगी वो आ जाएगी अपने पास A प्लस D। करंट अपने को गिवन है, ये लेंथ अपने को गिवन है, ये A 2 सेंटीमीटर, ये अपने को पास है गिवन कितनी 10 सेंटीमीटर, और अपन इसके अंदर पुट करके टोटल जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इजी करना चाहें तो अपन इसके अंदर कॉमन ले सकते हैं म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई एंड दिस इज 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस D। ये इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को पावर कैलकुलेट करना है, और पावर अपन जानते हैं P इक्वल टू E नॉट I नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 5 की वैल्यू पाई बाई 4, E नॉट 10 5, इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 21, one surface of a lens is convex, another is concave. Radius R1 R2 given है, और ये बिहेव करना चाहिए एज ए कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर ये जो लेंस है वो इस टाइप का है अपने पास, ये R1 ये R2। अपन जानते हैं कि फोकल लेंथ जो होगी 1 अपॉन F म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब बिहेव करना चाहिए एज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ अपन जानते हैं ये होती है पॉजिटिव, तो ये F पॉजिटिव तभी पॉसिबल है व्हेन R1 लेस देन R2। क्वेश्चन नंबर 22, यहां पर ये बैठी है 10, वोल्ट 10 ओम 2 ओम 5 ओम एंड 10 वोल्ट ए, और ये पॉइंटर बी। यहां पर अगर अपन देखें तो ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ए क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का पार्ट नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं इसमें कोई करंट नहीं होगा, तो करंट केवल इसमें होगा। इसको दो तरह से अपन कर सकते हैं। अगर इसके अंदर मैं करंट I1 लेता हूं तो ये करंट इसके अंदर आएगा, और I1 की वैल्यू जो आएगी इट इज 10/5 2 एम्पियर। इसमें अगर अपन करंट देखते हैं, ये लेट इट इज I2, ये इसमें I2, और I2 की वैल्यू अगर अपन देखें तो 20/10, और ये भी अपने पास होगी 2 एम्पियर के इक्वल। अब अपन इसके अंदर किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। A से चलकर B तक अपने को जाना है, किरचॉफ लॉ यूज करेंगे, दैट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज VA। अपन करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो -5 रेजिस्टेंस इनटू करंट, फिर इसमें कोई करंट नहीं, फिर अपन इधर चल रहे हैं अपोजिट ऑफ करंट, और अपोजिट ऑफ करंट जब अपन चल रहे हैं अपना पास ही है, और अपोजिट ऑफ करंट जब अपन चलेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर 10 इंटू 2, और लास्ट पॉइंट अपना VB, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो VA माइनस VB इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो -10 वोल्ट आ जाएगी। कैपेसिटर के अंदर 23 इजी है। कैपेसिटर के अंदर अपन जानते हैं पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज के अंदर चार्ज इनके अंदर सेम होगा, तो इन दोनों के ऊपर जो पैरेलल में है इन पर पोटेंशियल सेम होगा, V2 इक्वल टू V3 के इक्वल होगा, ठीक है। और टोटल चार्ज आके इन दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, तो Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3।
NVR इक्वल टू एटम के लिए, और ये होता है H अपॉन 2 पाई, NH इंटू 2 पाई। तो यहाँ से अगर अपन MV की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज NH अपॉन 2 पाई RK। और अपने को पूछा डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन जानते हैं लैम्डा इक्वल टू H अपॉन MV, H NH अपॉन 2 पाई R, H to H कैंसिल और ये 2 पाई R बाई N बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट अपने को पूछा गया गेट के बारे में 25। गेट देखिए ये यहाँ पर अगर केवल इसको अपन लेते हैं, ये अपन जानते हैं A और B, यहाँ पर सर्किल बनाया गया, इसका मतलब इसके साथ नॉट गेट और अटैच है। यहाँ पर अगर मान लो इसको यूं भी शो कर सकते हैं अपन इस गेट को, ये यहाँ पर अपन जानते हैं कि A B ये इनपुट है, तो आउटपुट यहाँ पर जो आएगा ये आउटपुट होगा A इंटू बी। नॉट गेट यहाँ पर लगा दिया तो यहाँ का जो आउटपुट होगा वो होगा A इंटू बी बार के, और अपन जानते हैं A इंटू बी बार होता है A बार प्लस बी बार। आगे जो गेट कनेक्ट किया गया है, अगर नैंड या नॉर गेट के दोनों एंड्स को कनेक्ट करके एक सिंगल बना दिया जाता है तो हमेशा ये नॉट गेट बनता है। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से नॉट गेट हो गया, ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। ये यहाँ पर नॉट इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर सर्किल बना रखा है, ये पूरा एक नॉट गेट है। अब यहाँ पर अपन के पास जो इनपुट होगा वो यहाँ पर अपन जानते हैं A बार प्लस B बार बार, और ये होगा A बार बार इंटू B बार बार एंड दिस इज A इंटू B, और ये अपन जानते हैं किसके लिए आता है, एंड गेट के लिए। तो अपना आंसर जो यहाँ पर होगा वो एंड गेट के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है कि A इंटू बी बार जो होता है वो होता है A बार प्लस B बार, और A प्लस B का जो बार है वो होता है A बार इंटू B बार, एंड अगर ट्वाइस बार है तो ये इक्वल टू A के। इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करें तो अपने पास A इंटू B बचेगा, और ये लास्ट में अपन जानते हैं नॉट एंड गेट के इक्वल होता है। 26 डायग्राम है, एंड का कोई दिक्कत नहीं है। 27 यहां पर 3 एनर्जी लेवल्स हैं A, B, C। ये कह रहा है पहले C टू B, यहां पर फ्रीक्वेंसी ν1, B टू A, ν2 और C टू A, दिस इज ν3। तो यहां पर अपन जानते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिट करेगा तो यहां पर फोटोन अपने पास इमिट होगा, और एनर्जी जो कि इनके एनर्जी जो फोटोन की एनर्जी होगी विच इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जीज। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में अपन लिख सकते हैं EC माइनस EB इक्वल टू H ν1। इन दिस केस EB माइनस EA H ν2। 1 प्लस 2 अगर अपन करते हैं ये कैंसिल होगा, और ये आएगा EC माइनस EA H ν1 प्लस ν2। अपन अगर C से A तक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी की वैल्यू इसी के इक्वल होगी, लेकिन यहाँ पर फोटोन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो अपन के पास ये जो होगा थर्ड केस के अंदर ये H ν3 के इक्वल आएगा, एंड दिस इज H ν1 प्लस ν2। तो यहाँ पर आंसर होगा ν3 इक्वल टू ν1 प्लस ν2 के इक्वल। इन 28 ये जेनर डायोड है। जेनर डायोड के अंदर अपन जानते हैं ब्रेकडाउन जब होता है तो यहाँ पर करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा मैक्सिमम, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो इसके ड्रॉप जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके इक्वल, और ये अपने को 40 वोल्ट गिवन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है उस कनेक्ट के ऊपर कभी भी वोल्टेज 40 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा, मतलब यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होगा उसी के इक्वल इस पर वोल्टेज होगा, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। 29 के अंदर अपन ये कह सकते हैं पॉइंट A है, दिस इज 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस पॉइंट O, यहां पर ये मान सकते हो 6 वोल्ट, और ये है 5 वोल्ट।
रेजिस्टेंस है 10 ओम, 20 एंड 30। मान लो करंट यहां से फ्लो हो रहा है I1, ये यहां पर I2 और ये I3। तो ये करंट जब जा रहा है, करंट हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अपन कह सकते हैं I1 की जो वैल्यू होगी I2 प्लस I3। करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट का पोटेंशियल अपने को चाहिए, लेट इट इज V0। यहां पर 10 गिवन है तो इनका हायर टू लोअर, तो दिस इज 10 माइनस V0 अपॉन रेजिस्टेंस 10। ये अगर अपन देखते हैं तो ये आ जाएगा V0 माइनस 6 अपॉन रेजिस्टेंस 20 प्लस ये अगर अपन यूज करते हैं V0 माइनस 5 और अपॉन 30। इसको सॉल्व करके अपन V0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको हिंट्स बता रहा हूं, केवल फॉर्मूला या इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं, सॉल्व आप इसको कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर अपने पास ये फर्स्ट कैपेसिटी, ये प्लेट एरिया ए, ये 2A, फिर आ रहा है 4A, 8A और इसी तरह से। लेकिन इसके अंदर यहां पर अपने पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप है, बाकी किसी में फिलअप नहीं। तो ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बनाएंगे, ये दोनों एक कैपेसिटर बनाएंगे। इस तरह से इन्फिनिटी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बनेंगे जो कि सारे सीरीज में होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की पॉजिटिव टर्मिनल, लास्ट वाले पर नेगेटिव, तो ये सारे सीरीज में होंगे। अब कैपेसिटर में जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर दोनों प्लेट जो है, यहाँ पर अगर अपन ये लेते हैं C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो यहाँ पर जो एरिया होता है, एक्चुअली दिस इज द कॉमन एरिया बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में जो कॉमन एरिया होता है वो होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर जो एरिया कॉमन आएगा वो 1, सेकंड वाले के अंदर जो आएगा कॉमन एरिया हो जाएगा 2A, इसके अंदर जो आएगा वो 4A। तो बाद में जो है वो एरिया कंटीन्यूअस। तो ये जो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस अगर अपन देखें तो वो आएगा A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D के। इसका जो कैपेसिटेंस होगा, इसमें कोई मीडियम फिलअप नहीं है, तो यहाँ पर 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इससे अगला जो आएगा उसके अंदर होगा 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये सारे कैपेसिटर सीरीज के अंदर होंगे। तो जब ये सीरीज के अंदर होंगे तो यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट जिसको बोल सकते हैं, तो ये आएगा D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K, D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, D अपॉन 4A एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरह से आपको इंफिनिटी स्टेप्स अपने पास आएंगे। अगर यहां पर अपन फर्स्ट स्टेप को छोड़ दें, बाकी सब में से कॉमन आ रहा है 2A एप्सिलॉन नॉट, D अपॉन 2, तो यहां पर आएगा 1 अपॉन 2, उसके बाद अपन देखेंगे 1 अपॉन 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी स्टेप्स। ये अपन जानते हैं एक प्रकार की जीपी बन जाएगी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर इंफिनिटी स्टेप्स कॉमन अगर अपन रेशियो लेते, ये 1/2, इंफिनिटी स्टेप्स का जो सम होता है वो A अपॉन 1 माइनस R कॉमन रेशियो, A फर्स्ट स्टेप होगी, तो यहां पर ये आएगा D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K प्लस D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इनटू फर्स्ट स्टेप A 1 माइनस 1/2। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K प्लस 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से सब में से कॉमन आ रहा है ये, और ये आ जाएगा 1 अपॉन K प्लस 1, बट दिस इज इक्वल टू 1/C। तो C की वैल्यू जब अपन सॉल्व करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D एंड K अपॉन K प्लस 1। थर्टी वन के अंदर अपने को मैक्सिमम टू मिनिमम करंट पूछा है। देखिए कैपेसिटर जब बैटरी या डीसी सोर्स जब कनेक्ट होता है, तो डीसी सोर्स कनेक्ट होने पर जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। फर्स्ट केवल t इक्वल टू 0, जो t को अपन ने ऑन किया कैपेसिटर अनचार्ज होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस यूज होंगे और मिनिमम यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा और मैक्सिमम करंट होगा। तो I मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस जो भी अपने को दे रखा है E अपॉन रेजिस्टेंस यहाँ पर R/2। जब
मिनिमम करंट पूछ रहा है, इसका मतलब एक ही रेजिस्टेंस कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने पर अपर ब्रांच के अंदर किसी तरह का कोई करंट नहीं होगा, केवल रेजिस्टेंस नीचे वाला जो आ रहा है वो यूज होगा। तो यहाँ पर मिनिमम जो आएगा इट इज ई बाई आर। इनका इजीली अपन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होता है तो उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 32, यहां पर एक टेबल है, इस पर एक चेन, इसका एंड जस्ट इसको टच किए हुए, ये रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी अपन जानते हैं 0। अब ये कह रहा है कि इसको ड्रॉप द चेन व्हेन हाफ ऑफ द चेन इज वर्टिकली पोजीशन द वर्क डन। इस केस के अंदर अपन जानते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा L/2 पर। तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो mgL/2। सेकंड केस में चेन यहां पर आ गई, हाफ चेन यहां पर है, तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा और ये होगा L/4 पर। The man drop the chain when half of the chain is vertically, sorry, पहले हाफ जो है वो वर्टिकली पोजीशन में है, तो ये L/4, सॉरी L/4। उसके बाद ये हाफ आ गई, तो यहां पर ये हो जाएगा L/8। तो यहां पर जो फाइनल एनर्जी आएगी वो आएगी mg इंटू L/8। अब यहां पर अपन जानते हैं वर्क डन जो होता है इट इज माइनस डेल्टा यू और माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के इक्वल। यहां पर वैल्यू अपन दोनों की पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए गाउस लॉ जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए गाउस लॉ को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं B इंटू एरिया एलिमेंट ds या dA इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 तभी हो सकता है जब जितना उसमें से इंटर करते हैं उतना ही वहां से क्या हो, इमर्ज हो, तभी इसके अंदर टोटल फ्लक्स 0 होगा। अगर कोई किसी भी सरफेस क्लोज सरफेस है, इसके अंदर अपन एक मैग्नेट रखते हैं NS, यहां से आउटवर्ड लाइंस होंगी, ये इनवर्ड होंगी, और ये क्लोज पाथ अपने को पता है, क्लोज पाथ बनेगा तो ही ये कंडीशन पॉसिबल है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर तीन चीजें अपने को मिली, किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है, मैग्नेटिक लाइंस क्लोज पाथ बनाती है क्योंकि तभी ये इमर्ज और इंटर होंगी, तो यहाँ पर ये सिंगल, और ये तभी पॉसिबल है जब अपने पास यहाँ पर दोनों पोल प्रेजेंट हो N और S। इसका मतलब मैग्नेटिज्म के अंदर सिंगल पोल पॉसिबल नहीं होता। तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर तीनों ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ये तीनों सही है। इट मींस जो आंसर होगा इसका फोर्थ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर सर्कुलर पाथ पे वर्टिकल में मूव कर रहा है, यहां पर इसकी लेंथ है, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मान लेते हैं VL, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी VS मान लेते हैं। यहां पर टेंशन ये होगी, TH, और ये जानते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम है और ये मिनिमम होगी, और इसका वेट भी इधर वर्क करेगा mg बोल। इसका मतलब मैक्सिमम टेंशन मिनिमम पॉइंट पर होगी, मिनिमम टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर। अगर अपन सेंटीमीटर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो लोएस्ट पॉइंट पर T मैक्सिमम माइनस mg इक्वल टू mvl स्क्वायर बाई लेंथ रेडियस l के इक्वल। तो T मैक्सिमम जो आया, T मैक्सिमम की वैल्यू आ गई mg प्लस n vl स्क्वायर बाई l। इन सेकेंड केस T मिनिमम प्लस mg
इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर बाई एल, और यहाँ पर टी मिनिमम जो आया उसकी वैल्यू अपने पास आ गई एम वी एच स्क्वायर बाई एल के माइनस एम जी, दिस इज इक्वेशन 2। अब अपने को कह रहा है मैक्सिमम टू मिनिमम, इनका रेशियो 4 के इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसके अंदर 1/2 अपन लिखेंगे, 1/2 इक्वल टू 4, और यहाँ पर एम जी प्लस एम वी एल स्क्वायर बाई एल, और यहाँ पर एम वी एच स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एम वी एल स्क्वायर बाई एल माइनस 4 एम जी इक्वल टू एम जी प्लस एम वी एल स्क्वायर बाई एल। तो यहां पर 4 एम वी एल स्क्वायर बाई एल इक्वल टू 5 एम जी प्लस एम वी एच, सॉरी एच इक्वल होगा एच, और एम वी स्क्वायर एल बाई एल। अब अपने को सिर्फ इतना ही करना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि यहाँ पर अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, यहाँ पर इसको रेफरेंस लेवल मानते हैं, तो रेफरेंस लेवल के ऊपर अपन जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी केवल काइनेटिक, ये इसके बाद में 2L हाइट पर ऊपर चला जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर अपन लगाते हैं तो यहाँ पर हाफ एम वी एल स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एम जी और 2L के इक्वल हो गई हाइट, प्लस यहाँ पर हाफ एम वी एच स्क्वायर। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अपने को हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ से लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी देख लेते हैं, तो वी एल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, एम सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर 4gl प्लस एम कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा वी एच स्क्वायर। अब ये वी एल जो है इसकी वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे, वी एल स्क्वायर, और एल की वैल्यू अपने को v1 है, इसके आगे अपन सॉल्व कर लेंगे, ये वी एल की वैल्यू यहाँ पर अपने को इसमें पुट करनी है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है इसका। मैक्सिमम टेंशन हमेशा वर्टिकल के अंदर सर्कुलर मोशन जब होता है तो लोएस्ट पॉइंट पर होती है, मिनिमम टेंशन हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पर होती है। सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर यूज करेंगे। ये वी एल की स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और अपने को सॉल्व करना है, और कुछ भी इससे आगे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, सडनली स्टॉप हो जाता है, अगर अर्थ माने मास एम रेडियस आर, सैटेलाइट यहां रिवॉल्व कर रहा है एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, मास स्मॉल एम एट ऑर्बिटल वेलोसिटी वी यू। यहां पर अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर अगर अपन इसको देखें तो यहां पर ये जब स्टॉप हो जाएगा, पहली बात तो ये कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है इट इज रूट जी कैपिटल एम अपॉन जो भी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये स्मॉल आर। यहां पर अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसके यहां पर जब ये रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो केवल इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो होती है जो है वो होगी माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। जब स्ट्राइक करेगा तो इसके पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जी एम एम अपॉन कैपिटल आर, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी, यहां पर वेलोसिटी मान लेते हैं वी से स्ट्राइक कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ये होगी। अब अपने स्मॉल एम यहां से सब जगह से कैंसिल हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी जी एम अपॉन ये है, तो इसके लिए अपन स्क्वायर करें तो जी एम अपॉन आर की जगह अपन माइनस यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पर अपन लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर विद नेगेटिव इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर, या स्मॉल एम कैंसिल हो गया। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अपन जानते ही होती है कितनी, रूट 2 जी एम अपॉन कैपिटल आर। तो यहां से अगर अपन जी एम अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये बी ई स्क्वायर बाई 2, तो कहने का मतलब है ये आ जाएगा बी ई स्क्वायर बाई 2 और प्लस बी स्क्वायर बाई 2। स्मॉल एम सब जगह से कैंसिल कर दिया, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो अपने पास यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो इसको यहाँ लेके आए तो ये प्लस के अंदर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर अपने पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी बी
क्वेश्चन नंबर 36 सिंपल है। एक का हाफ टाइम पीरियड 1 आवर, सेकंड का है 2 आवर्स। अब 2 आवर्स के बाद पूछ रहा है तो डेफिनेटली जो फर्स्ट है अगर उसके मॉलिक्यूल्स N0 माने तो 2 टाइम पीरियड्स के बाद, 2 हाफ टाइम पीरियड्स के बाद